for Lord and Savior Jesus Christ for the last day of our convention. और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हमारे सम्मेलन के आखिरी दिन आप सबको हम निमंत्रण करते हैं. And as we are meditating on the aspect of the power of God, we will be still meditating this evening also. जैसे हम परमेश्वर के सामर्थ के बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं, आज भी वही वचन को हम और एक बार हम पढ़ेंगे. Once again we'll read Psalms 110 and verse 3. और एक बार भजन 110 का तीसरा वचन को पढ़ेंगे. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं. तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है. Thy people shall be willing in the day of thy power. तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन में स्वेच्छा बलि बनते हैं. So the day of the power is not just one day. ये पराक्रम का दिन केवल एक दिन को नहीं दिखाता है. The day of the power starts in a person's life when he accepts the Lord Jesus Christ as the Savior. ये अनुभव जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता होकर स्वीकार करता है, उस दिन से लेकर ये शुरू होता है. So because that person comes into the power of the gospel by believing the gospel and surrendering him to the blood of Jesus, he comes into the power of blood of Jesus. ये परमेश्वर के लहू के सामर्थ के अधीन में एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता को स्वीकार करता है, तब वो उसके अधीन में आ जाता है. So he is not only coming under the power of the blood of Jesus, he is coming under the power of his gospel. ये केवल मसीह यीशु के लहू के नीचे नहीं आता, बल्कि वो सुसमाचार के नीचे अपने आप को समर्पण करता है. So when a person goes to meet the Lord in the midday, हम बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह को मध्य आकाश में मुलाकात करने वाले हैं. so upon that person the blood of Jesus should be found. उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू निश्चय पाया जाना चाहिए. Because as we heard in the last session of the meeting yesterday, there are three that give witness. Blood of Jesus has to give witness. कल हमने जैसे आखिरी समय पर जैसे हमने सुना था, प्रभु यीशु मसीह के असूरी में 3 गवाह है, वो गवाह को हम प्राप्त करना चाहिए. And the blood of Jesus is one of that witness. ये 3 गवाहों के बीच में एक मसीह यीशु का लहू का गवाही है. From the day of salvation till the day of rapture, or from the day of salvation till our last breath, the blood of Jesus should be there upon a child of God's life. हमारे जीवन में, परमेश्वर के बच्चे के जीवन में उद्धार पाया हुआ उस दिन से लेकर प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने वाले उस समय तक वो इस अनुभव में या मसीह यीशु के लहू के अधीन में जीवन बिताना चाहिए. That means that he is in the day of the power of the Lord. उसका मतलब वो परमेश्वर की वो सामर्थ के दिन में वो पाया जाता है. That very same person, if he obeys the Lord in waters of baptism, वही व्यक्ति जब वो पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करेगा, if anyone here who not yet accepted the Lord's counsel and has not taken baptism, this evening we beseech you to obey the Lord in waters of baptism, that you may come under the power of His word. यदि आप हम में से हमारे बीच में यदि कोई उद्धार पाए हैं, लेकिन प्रभु का सलाह पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किए, तो आज प्रभु आपसे विनती करता है, आप इस पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. That you may come under the power of His word. ताकि आप परमेश्वर की उस वचन के अधीन में अपने आप को समर्पण कर सकें. The book of Hebrew writer is telling, the Lord is upholding everything by the power of His word. जब हम इब्रानी की पत्रिका में आते हैं, प्रभु हर एक बातों को अपने वचन से थामे रखता है. By the power of His word. वो अपने वचन से वो थामे रखता है. By the power of His word. वो वचन के सामर्थ के द्वारा वो थामे रखता है. So from that we can understand there is power in the word of God. इससे हम यह जान सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में भी एक सामर्थ है. So as we yield yourself to the counsel of God, that is word of God, you are coming under the power of the word of God. जब हम परमेश्वर के सलाह उसके वचन के लिए हम अपने आप को समर्पण करने पर प्रभु का वो सामर्थी वचन के अधीन में हम आते हैं. And that is, you are coming in the day of His power still further. इसका मतलब आप परमेश्वर की वो पराक्रम के दिन के अधीन में आप आते हैं. Jesus, while He was on this earth,
he said unto the disciples that if you are born of the water and the Spirit, you can enter into the kingdom of God. जब यीशु मसीह संसार में था तब वो स्वयं ऐसा कहता है, यदि तुम आत्मा और जल से नया जन्म नहीं पाओगे तो प्रभु के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते हो। And while Jesus was ascending from this earth, he told unto his disciples, tarry in Jerusalem till you endued with power from above. जब वो यरूशलेम में चेलों के सामने स्वर्गारोहण हुआ था तब यीशु मसीह उनको देखकर कहता, ऊपर से आने वाले सामर्थ को पाने तक उसमें बने रहो। So that power from above is the baptism of the Holy Spirit. ये ऊपर से आने वाला सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। If anyone has not received the Holy Spirit, यदि हमारे बीच में कोई पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया है तो so you will not have the power to be raptured when Jesus comes. जब यीशु मसीह आएगा तो आपके अंदर वो सामर्थ नहीं पाया जाएगा कि उसके आगमन में आप उठाओ। As we read yesterday also, we are kept by the power of God for the end salvation in 1 Peter chapter 1 and verse 5. जैसे हम पहला पत्रस पहला अध्याय के 5वें वचन में आते हैं, अंतिम समय में प्रकट होने वाले उद्धार के लिए हम उस सामर्थ में बने गए। So we must be kept by the power of His blood. We must be kept by the power of His word. We must be kept by the power of His Spirit, so that we will be ready for the day of rapture. इसीलिए हम उस पुनरुत्थान के दिन में शामिल होने के लिए हम उसके लहू के सामर्थ में, उसके वचन के सामर्थ में और उसके आत्मा के सामर्थ में हम रहना होगा। And by that power only we will be raptured when Jesus comes. वही सामर्थ के द्वारा जब यीशु मसीह आएगा तब हम उठा लिए जाएंगे। And in John chapter 6, the Lord Jesus telling, if you are not having fellowship with my blood and flesh, you will not be resurrected on the last day. जब हम यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय में मानने के समय यीशु मसीह कहता है, यदि तुम्हें मेरे मांस में और लहू में सहभागिता नहीं है तो तू कदापि मेरे आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। That is, you will not be resurrected on the last day. उसका मतलब अंतिम दिनों में आप उठा लिए नहीं जाओगे। So there need a power for resurrection. तो उसका मतलब यह है हमारे जीवन में एक सामर्थ हमें उठा लिए जाने की For that जरूरी a है। child of God should have a communion with the blood of Jesus and the flesh of Jesus. इसके लिए एक परमेश्वर के बच्चे को मसीह के शरीर और उसके लहू में एक सहभागिता रखना होगा। So you must have partaking in the communion of the apostles, so that you will have power to be resurrected on the last day. इसीलिए अंतिम दिनों में हम पुनरुत्थान पाने के लिए प्रेरितों के संगति में रहकर रोटी तोड़ने में और प्रभु के मेज में हम शामिल होना चाहिए। That is what in the first century it is said about the disciples of the first century. They continued steadfastly in the apostolic doctrines and in the breaking of bread. वही पहले सदी में प्रेरितों के साथ हरेक लोग सहभागिता रखकर रोटी तोड़ने में और उनके उपदेश में बने हैं करकर हम पढ़ सकते हैं। So unless and until we have the right fellowship, and in that fellowship, if you are not having fellowship with the blood of Jesus and the body of Jesus, you will not be raptured at the last day. जब तक हमें मसीह यीशु के लहू से और उसके शरीर से एक अच्छा सहभागिता नहीं है तो अंतिम दिनों में उसके आगमन में हम उठा लिए नहीं जा सकते हैं। The body of Jesus is an anointed body. यीशु मसीह का शरीर एक अभिषिक्त शरीर है। The blood of Jesus is anointed blood. यीशु मसीह का लहू एक अभिषिक्त लहू है। So there is power in the body of Jesus, there is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के शरीर में और उसके लहू में एक सामर्थ्य है। So everyone who has taken the right baptism should have the fellowship with the apostles, so that they may continue in the doctrine of the apostles and also in the breaking of bread, so that they may have this power of the body of Jesus and the power of the blood of Jesus continuously work in the body, so that they may be ready for the rapture. जो कोई पानी के बपतिस्मा लिए हैं प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने में और उनके साथ हर बातों में सहभागिता रखने में बना रहना, तभी उस शरीर के द्वारा और उसके लहू के द्वारा आने वाले सामर्थ से उसके आगमन में हम उठा लिए जा सकते हैं। Those who are seated here, if you are following this truth, and if you are evading or if you are going away during the communion time, this is the high time that you repent and rectify your life and take part on the holy table to have the power to be raptured. यदि हम में से कोई परमेश्वर की हजूरी में इस सहभागिता में बने नहीं है या इस प्रभु के मेज को तुच्छ जानकर आप लौटते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये आपके लिए उचित समय है पछताकर अपने आप को समर्पण करके उसके मेज में शामिल होकर उसका सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। Oh, thy people shall be willing in the day of thy power.
तेरे पराक्रम के दिन में तेरे लोग स्वेच्छा बलि बनते हैं। Yes, dear brother, dear sister. हाँ प्रिय भाई प्रिय बहन, Oh, every child of God should be willing to do something for the Lord. हर एक परमेश्वर के बच्चे स्वेच्छा बलि के समान प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए तत्पर होना है। Oh, so that is, we have to surrender ourselves willingly to the plan of God, to the purpose of God, to the will of God. हमारे जीवन को परमेश्वर की योजना के लिए, उसकी इच्छा के लिए हम स्वेच्छा बलि के समान पूरे मन के साथ हमें समर्पण करना By होगा। surrendering ourselves to do the will of God, we receive a power in our spirit, soul and body to be raptured at the coming of the Lord. जब हम अपने जीवन को पूरे मन के साथ प्रभु के लिए हम समर्पण करते हैं, तब हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक सामर्थ्य को पाते हैं ताकि हम प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएं। When you are coming into this experience, जब हम इस अनुभव में आते हैं, so we can experience the presence of God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के समूह को हम अनुभव कर सकते हैं। So there is power in the presence of God. प्रभु के समूह में एक सामर्थ्य है। So every child of God should preserve his life or her life in the presence of God, so that she may or he may experience the power of God always working in their lives. हर एक परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर के हजूरी में ये सामर्थ को संभाले रखना ताकि उसका सामर्थ निरंतर हमारे अंदर कार्य करे। In many Christian houses, if you go, we can find this verse hanging on the houses in the wall. हर एक मसीह लोगों के घर में हम जाते हैं तब एक वचन उनकी दीवार पर लटकता हुआ आप देख सकते हो। It is not a biblical verse. It is not a biblical verse. वो एक वचन का, पवित्र वचन का एक वचन नहीं है, It is a saying. वो एक कहावत है। Christ is the head of this house. मसीह हमारे परिवार का एक सर है। The silent listener of every conversation. हमारे हर एक गुप्त बातों को खामोश रीति से सुनने वाला। Unseen host of every meal. हमारे हर एक जरूरतों को देखने वाला एक व्यक्ति। That should be true in every child of God's life, and that means the presence of God is there in that house. ये परमेश्वर के बच्चों के जीवन में वाकई अनुभवशील होना है और ये बात वास्तविक है। Christ is the head of this house. हमारे परिवार में मसीह सर है। And that means that every decision that we take, it is by Him, through Him, and of Him. इसका मतलब हमारे जीवन में जो कुछ हम निर्णय लेते हैं वो उसके द्वारा, उसके साथ और वो ही होना चाहिए। Christ is the counselor. Christ is the one who gives us counsel to do certain things in our life. मसीह हमारे लिए सलाह देने वाला होकर हमारे जीवन के हर एक भागों में मसीह के द्वारा सलाह को प्राप्त करते हुए हम जीवन में काम करना है। Every of the move of our family, it is only by His counsel or by His leading. हमारे परिवार के हर एक आगे बढ़ने वाला अनुभव केवल प्रभु के सलाह के द्वारा, उसके अगुवाई के द्वारा ही होना है। That means that Christ is there in that house. उसका मतलब मसीह उस परिवार का एक सर है। Is it true in your life, dear brother, dear sister, this evening? Put a question to yourself and get the answer and rectify your life. क्या इस शाम के समय प्रिय भाई प्रिय बहन, ये आपके जीवन में एक वास्तविक है? एक सवाल आपके हृदय में आप उठाइए, और यदि वैसे नहीं है तो अपने जीवन को आप सुधार दीजिए। Let Christ be the lawgiver of your house. हाँ, यीशु मसीह आपके द्वार पर खटखटाते रहे। Let Christ be a lawgiver of your house. परमेश्वर आपके परिवार में एक व्यवस्था को देने वाला होकर रहे। Let Christ be the counselor of your house. आपके परिवार में प्रभु एक सलाह देने वाले होकर रहे। Let Christ be the guide of your house. आपके परिवार को चलाने वाला मसीह होकर रहे। Let Christ be the leader of your house. केवल प्रभु ही आपके परिवार को अगुवाई करने वाले होकर रहे। That is what we find in the life of David. वो ही हम दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। He never took a wrong move without the counsel of the Lord. वो अपने जीवन में कदापि गलत कदम प्रभु के सलाह के बगैर नहीं लिया। But one time he took the wrong move and he came into the judgment of the Lord came upon him. लेकिन एक समय उसने प्रभु का सलाह लिए बिना गलत कदम लेकर परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर, उसके जीवन में आया। At that time he took a wrong move in counting the people of Israelites. There also we can find the hand of the Lord came upon him. वहां हम देख सकते हैं गलत कदम उठाकर इसराइल लोगों को गिनती करने लगा और परमेश्वर का हाथ उसके विरोध में उठा। Otherwise he was a person always taking the counsel of the Lord in everything. उसके बिना उसके जीवन के हर एक आगे बढ़ने वाले अनुभव में प्रभु के ओर से वो सलाह लेता था। That is why the Lord is telling about David, he is a man after my own heart. इसीलिए प्रभु उसके प्रति गवाही देता है, मेरे हृदय के योग्य एक मनुष्य दाऊद।
he took the counsel of the Lord. At the same time, for a small error, he repented in the presence of God. वो हर बातों में प्रभु से सलाह लेता था, लेकिन उसके अपने जीवन के एक छोटा गलती में वो प्रभु के हजूरी में पछताया। And what did he say in Psalms 50 and verse 11? जब भजन 50 के 11 में आने के समय वो क्या कहता है? Restore unto me the joy of salvation. Take not away the presence. Take me not away from thy presence. प्रभु मेरे अंदर उस उद्धार के खुशी को लौटा दे, तेरे सम्मुख से मुझे कदापि नहीं निकालना। So he's used that when he does anything against the Lord, against the counsel of the Lord, of his own will, the presence of the Lord will depart from him. उसका मतलब उसके अंदर एक समझ था, जब कभी वो गलत कदम को निकालता है, उसके जीवन में कुछ गलत करता है, तो वो परमेश्वर के हजूरी से निकाला जाएगा। Oh, presence of the Lord is very important in our life that we may experience the power of God. परमेश्वर के हजूरी कितना बहुमूल्य महत्वपूर्ण है कर उसके सामर्थ के अधीन में रहने वाले समझ सकते हैं। What does that saying says? Christ is the head of this house and the silent listener of every conversation. मसीह मेरे परिवार का सर है और वो हर एक गुप्त बातों को सुनने वाला है। ये किस बातों को दिखाता है? So our conversation is heard by our Jesus. हमारे हर एक बातचीत हमारे मसीह के द्वारा सुनाया जाता है। So our conversation must be pleasing in His sight. हमारे हर एक बात जो है प्रभु को प्रसन्नदायक होकर If the बदलना है। conversation is filthy conversation, Christ is not there. यदि हमारे बात जो है वो घृणित बातें हैं तो प्रभु कदापि उसे नहीं सुनेगा। In Deuteronomy chapter 23 and verse 14, the Lord says like this. जब व्यवस्था विवरण 23 का 14 में प्रभु क्या कहता है? If you see any unclean thing, he will not be there in that place. यदि वो छावनी के भीतर कोई अशुद्ध बातों को देखेगा तो वो कदापि वहां नहीं ठहरेगा। That means that if your words are unclean words, unsanctified words, or filthy words, or words of the people of this world, Christ will not be there in that house. यदि हमारे भीतर एक घृणित शब्द है तो, अशुद्ध शब्द है तो, पवित्र नहीं किया हुआ शब्द है तो, संसार में बोलने वाले शब्द है तो प्रभु वहां कदापि नहीं ठहरेगा। Presence of the Lord will not be there. परमेश्वर का हजूरी वहां नहीं रहेगा। And the power that is in the presence of the Lord cannot be experienced by you. जो सामर्थ परमेश्वर के हजूरी में है वो कदापि आप महसूस नहीं कर सकते हो। In John chapter 14 and verse 20, Jesus says like this. यूहन्ना सुसमाचार 14 के 20 में यीशु मसीह ने क्या कहा? That day, उस दिन I in you, मैं तुम पर and you in me. तू मुझ पर। That is when we receive the baptism of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हैं, We have this experience of Christ coming in us and we in Christ. हम जिस अनुभव को पाते हैं मसीह हम में और हम मसीह में ठहरेंगे। The Christ comes into us मसीह हमारे भीतर वास करता है। as Father, Son and the Holy Spirit. In the form of Father, Son and the Holy Spirit, when we receive the Holy Spirit, triune God comes and abides there. पवित्र आत्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तृत्व परमेश्वर हमारे भीतर आकर वास करेगा। जब हम पवित्र आत्मा के We अभिषेक को become पाते the हैं habitation of the Lord. हम परमेश्वर का एक निवास स्थान है। We become the dwelling place of God. हम प्रभु का सामर्थ्य वास करने वाला एक जगह We है। become the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर होते हैं। In the temple of God, His power will be manifested. जहाँ परमेश्वर का मंदिर है वहाँ उसका सामर्थ काम करेगा। What psalmist is telling? भजन लिखने वाला क्या कहता I है? want to see your glory and power as I see in the sanctuary. जो महिमा और सामर्थ तेरे निवास स्थान में पाया गया वो हम देखने के लिए चाहते हैं। I want to see the glory and power as I saw in the sanctuary. मैं उस महिमा और सामर्थ को देखने के लिए चाहता हूँ वो जो तेरे निवास स्थान में पाया गया। In the presence of God, glory and power is there. परमेश्वर के हजूरी में महिमा और सामर्थ कार्य करता है। When we are anointed by the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा we अभिषेक become the sanctuary of the Lord. हम परमेश्वर का निवास स्थान होकर बदल The जाते presence हैं। of the Lord is there. परमेश्वर का हजूरी वहाँ काम करेगा। Oh, dear brother, dear sister, प्रिय भाई प्रिय बहन, we must keep ourselves sanctified. हम हर वक्त अपने जीवन को पवित्र ठहराना We है। must preserve ourselves in the holiness which the Lord desires. हमारे जीवन को हर वक्त प्रभु चाहने वाले पवित्रता में हमें संभाले We रखना must होगा। preserve our life in the holiness which the Lord is liking or pleasing in. हम हर वक्त ये बात को छाना है जो पवित्रता प्रभु चाहता है, जो उसके लिए प्रसन्नदायक वैसे हम जीवन That बिताना we है, may experience the power of His presence in our life. ताकि हम परमेश्वर के हजूरी का वो सामर्थ हमारे जीवन में हम अनुभव कर सके। So let not filthy communication come out of our mouth. इसीलिए हमारे मुंह से कदापि घृणित वचनों को हम न बोले। Let there be no angry words come out of your mouth. हमारे मुंह से कदापि गुस्सा और क्रोध निकलने वाले शब्द ना आए। Let there be no proud words coming out of your mouth. हमारे मुंह से कदापि घमंड का शब्द न आए। If that is there, remember, dear brother, dear sister, Christ will not be there. यदि ऐसे कोई शब्द हमारे भीतर है तो मसीह वहां नहीं पाया जाएगा। If Christ is not there, presence of God is not there.
there. यदि मसीह हमारे भीतर नहीं है तो प्रभु का असूरी वहां नहीं होगा. If Christ is not there, presence of God is not there, power of God also will not be there. यदि मसीह वहां नहीं है तो उसका समूह भी नहीं, उसका सामर्थ भी वहां नहीं होगा. Let a house experience the power of God. आपका परिवार परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने दे. For that, उसके लिए you have to preserve your life in the anointing of the Holy Spirit. If you have not received the Holy Spirit, it is high time that you ask and receive the Holy Spirit. उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के अधीन में रहना होगा. ये उचित समय है. यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाए तो ये समय पा लीजिए. Jesus says, ask and it shall be given unto you. यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा. Ask from your soul. प्राण से मांगिए. Jesus says, seek and you shall find. यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे. Seek with your spirit. अपने आत्मा से आप ढूंढो. And Jesus says, knock and it shall be opened unto you. यीशु मसीह ने कहा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा. With your body keep on knocking. जैसा आपका शरीर लगातार खटखटाते रहे. And it is the promise of the Lord, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. और ये प्रभु का वायदा है, आखिरी दिनों में हर एक प्राणियों के ऊपर मेरा आत्मा को ढेल दूंगा. Oh, that is the power of God. हाँ, वो परमेश्वर का एक सामर्थ है. We must be filled by the Holy Spirit to have the power of God working in our lives. हमारे जीवन में हर वक्त पवित्र आत्मा में भरपूर रहना ताकि उसका सामर्थ निरंतर हमारे अंदर कार्य करे. And thereby experience the presence of God in our life. उसके द्वारा प्रभु का सूर्य को हर वक्त हम महसूस कर सके. Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. I read a book called I Dare to Call Him Father. मैंने ऐसे एक पुस्तक पढ़ा, उसको पिता होकर पुकारने के लिए हिम्मत करना. It is written by a Pakistani woman, Bilki Sheikh. वो पाकिस्तानी का एक स्त्री मिल्की शेख के द्वारा लिखा गया है. She received the Lord as Savior. उसने यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता होकर ग्रहण किया. And she was experiencing the presence of God in her life in a mighty way. उसने अपने जीवन में परमेश्वर के हजूरी को इतना अनुभव किया है, सामर्थ्य के साथ उसने अनुभव किया. In that, in one portion, she has written like this. एक भाग में उसने ऐसा लिखा है. She told a small lie for good purpose only. उसने अच्छे बातों के लिए एक छोटा झूठ कहा. What is it? वो क्या है? She wanted to go for a prayer meeting. उसको एक प्रार्थना के लिए जाना था. But she told like this, I'm going for a meet, that is to attend a party. उसने ऐसे कहकर गई कि मुझे एक पार्टी में शामिल होना है. I'm going for a tea party. उसने कहा कि मुझे एक छोटा पार्टी में जाना है. But actually she is going to attend a prayer meeting. लेकिन वास्तविक तौर से उसे प्रार्थना में जाना था. Then immediately what happened? तुरंत क्या हुआ? She lost the presence of God. उसने परमेश्वर के हजूरी को खो बैठी. And her grandson, a small boy who was with her, she is asking her grandma, what has happened? There is a change in your face. तब उसके grandson is not a saved person or anything, but he is a Muslim. But he is telling, I find a change in your face. What happened? उसके परिवार में रहने वाले उनका पोता जो है अचानक दादी माँ को देखकर, माँ, दादी माँ, आपके चेहरा में अंतर क्या है? क्या हो गया तुम्हें? When the presence of God departs, there will be change taking place in us. उसके जीवन में परमेश्वर के हजूरी उससे हटाए जाने के कारण उसके जीवन में कुछ अंतर दिखाई दिया. She confessed her failure. उसने अपने हरावट को कबूल किया. Till the presence of the Lord was restored, she did not leave the Lord. जब तक परमेश्वर के हजूरी उसके जीवन में वापस नहीं आया, तब तक वो पुकारती रही. A small lie will make you to lose the presence of God, dear brother, dear sister. प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके जीवन का रहने वाले एक छोटा झूठ है प्रभु के हजूरी को आपके जीवन से हटा देगा. So how essential for a child of God to keep himself or herself in the presence of God, so that the power of God may be manifested through him. तो कितना मुख्य बात है प्रभु के हजूरी को हमारे जीवन में रखवाली करने के लिए हम चौकसी के साथ हम जीवन बिताएं. So a small lie took away the presence of the Lord and took away even the form, the change, the whole change, face got changed. एक छोटा झूठ उसके जीवन में प्रभु का हजूरी को निकाल दिया और उसके जीवन, उसके चेहरा में एक परिवर्तन को लाया. Oh, this evening, ये शाम के समय the Lord wants every one of us to experience the presence of God in our day-to-day life. हमारे दैनिक जीवन में हर एक दिन प्रभु का हजूरी को हम हर एक लोग अनुभव करने के लिए प्रभु चाहता है. And what is still found in that way saying, वो उस कहावत में और क्या कहा गया है? the host of every meal. हमारे जीवन के हर एक भोजन. Read Exodus chapter 23 and verse 25. निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय का 25वां वचन पढ़िए. और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा.
And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Ye shall serve the Lord your God, तुम अपने यहोवा को उपासना करना, and he will bless the bread and water, वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष देगा, and I will take away the sickness away from you. और मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। Praise be to his holy name. मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। When the Lord is hosting a meal, हमारे प्रभु हमारे बीच में एक भोजन तैयार किया है। when the Lord is giving that meal, जब प्रभु वो भोजन हमें देता है तो what he will do? वो क्या करेगा? When the bread went into the hands of Jesus, what did he do? जब यीशु मसीह के हाथ में रोटी गया तब उसने क्या When the किया? five loaves went into the hand of Jesus, what did Jesus do? जब 5 रोटी उसके हाथ में दिया गया तो उसने क्या किया? He kept that in his hand. तो उसने वो रोटी को लिया, He lifted up his head. उसने अपने चेहरा ऊपर की ओर उठाया, He blessed it and thanked the Lord, Father. उसने धन्यवाद देकर प्रभु पिता को उसने धन्यवाद किया। Yes, dear brother, dear sister. हाँ प्रिय भाई प्रिय बहन, If the presence of God is there, यदि प्रभु का असुरी है तो, if the presence of God is there in your house, यदि आपके परिवार में परमेश्वर के असुरी है तो, if the presence of God is there in your life, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का असुरी है तो, whatever you drink and whatever you eat, it is blessed by the Lord, and when the Lord has blessed it, it will remove every kind of sickness and you can experience perfect health. आप जो कुछ पीते हैं, आप जो कुछ खाते हैं, वो वाकई प्रभु के द्वारा आशीष किया होगा और आपके जीवन में शरीर में रहने वाले हर एक बीमारी को वो दूर करेगा। He will bless the bread and water, and I will remove the sickness. It is the promise of the Lord. वो अन्न जल को आशीष करेगा और आपके बीच में हर एक रोगों को दूर करेगा, ये प्रभु का वायदा है। This evening, इस रात के समय will you humble yourself to have this presence of God continuously to be found in your life, so that you may experience perfect health in your body? कितने लोग अपने जीवन को नम्र करेंगे ताकि ये परमेश्वर का हसूरी सामर्थ आपके जीवन में काम कर सके? Praise be to his holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। When we go to the book of Nahum chapter 1, जब हम नाहूम के पहला अध्याय में आते and हैं, read the 5th verse, उसकी 5वें वचन में, there we can experience the power of the presence of God. वहाँ प्रभु यीशु मसीह के हजूरी के The सामर्थ power of को, the presence of God. वहाँ परमेश्वर के हजूरी के सामर्थ को हम देख सकते हैं। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burnt at his presence, yea, the world and all that dwell therein. Hallelujah! Mountains will quake at his presence. पहाड़ उसके सामने कांप उठते हैं। Mountains will quake at his presence. पहाड़ उसके सामने कांप उठते हैं। There may be many mountains in your life like problems. आपके जीवन में पहाड़ के समान कई समस्या हो सकता This है। evening the Lord is telling, my presence is there with you, so that every mountains will quake and tremble, and it will no more be found there before you. इस रात के समय प्रभु आपको देखकर कहता है, आपके जीवन में जो कोई समस्या क्यों न हो, इस पहाड़ के समान वो कांप कर गल उठेगा। Let the presence of God be there. आपके परिवार में परमेश्वर का हजूरी होने दे। Let the presence of God be in your life. आपके जीवन में प्रभु का हजूरी होने दे। And thereby you can make every mountains to quake, and the mountains will not be found in your life from this moment onwards. उसके द्वारा आपके जीवन में आने वाले हर एक पहाड़ हट जाएगा और गल जाएगा और आगे से कदापि वो नहीं रहेगा। And the hills will melt. और वहाँ पहाड़ियां गल जाएगी। What are these hills? ये पहाड़ियां क्या है? That is the pride characters that is dominating our lives. वो हमारे जीवन में पाए जाने वाला घमंड का स्वभाव है। All that will melt in the presence of God. वो सारे बातें प्रभु के हजूरी में वो गल उठेगा। Lord, this is the pride that is dominating my life, Lord. प्रभु ये मेरा जीवन में काम करने वाला एक घमंड है। I don't want it, Lord, but yet still that is found in me, Lord. प्रभु मैं उसे नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे भीतर वास करता है। If you allow the Lord to enter your life, तो वो घमंड आपके जीवन if you में, allow the Lord to enter your life, यदि प्रभु को आपके भीतर आने के लिए जगह देने if पर, you give your house totally, the keys of your house into the hands of the Lord, आपके परिवार के कुंजी जो है उसके हाथ में आप थाम दीजिए, oh, that hills will melt away. वो पहाड़ियां गल जाएगा। It cannot stand in the presence of God. वो परमेश्वर के हजूरी के सामने कदापि खड़ा नहीं हो सकता। And every earthly things will melt away. हर एक संसार के बातें वो पिघल जाएगी। The earthly cares, संसार के हर एक चिंताएं, oh, everything will melt away in the presence of God. हर एक बातें परमेश्वर
परमेश्वर के असुरी में वह गल जाएगी। And also all the things that is in the world. और जो कुछ इस संसार में रहता है, What is there in the world? इस संसार में क्या The रहता है? world is full of cares. ये संसार चिंताओं से भरा हुआ है, The world is full of lust. ये संसार लालसाओं से भरा हुआ है, The world is full of filthy things. ये संसार घृणित बातों से भरा हुआ है, The world is full of its spirit, that I is there in this world. ये संसार में ये सांसारिक आत्मा जो मैं कर कार्य करता है वो वास करता है। The world is full of sorrows. ये संसार दुख से भरा हुआ है, The world is full of problems. ये संसार समस्याओं से भरा हुआ है। But if you allow the presence of God to enter your life, enter your house, all this will flee away from your life. यदि आप अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु के असुरी के लिए आप जगह देंगे तो ये हर एक बातें आपके जीवन से हट जाएगा। We are in the presence of God this evening. हम परमेश्वर के असुरी में इस रात के समय पाए जाते हैं। The power of God is here. हमारा बीच में प्रभु का असुरी है। You might have come with a heavy burden in your heart. आपके हृदय में एक बड़ा बोझ के साथ यहाँ आए होंगे। You might have come with the great problems. आपके जीवन में बड़ा समस्याओं के There साथ might आप be आए होंगे। financial problem in your life. आपके परिवार में आर्थिक समस्या There होगा, might be family problems in your life. एक पारिवारिक समस्या हो सकता है। But here, लेकिन यहाँ Jesus is here. यीशु मसीह है, Father is here. पिता है, Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा है, Holy angels are here. पवित्र स्वर्गदूत हमारे बीच में Holy है, apostles are here. पवित्र प्रेरित लोग हैं, Holy church is here. पवित्र कलीसिया है, Presence of God is here. परमेश्वर का सूर्य हमारे बीच में है। If you believe, यदि आप विश्वास करने if you पर, believe, यदि आप विश्वास करने you will पर go from this place without burden. आप परमेश्वर के असुरी से दुख के बिना लौट सकते हो। Oh, the presence of God is there, and power of God is there, and every burden will roll away. परमेश्वर का सूरी है, परमेश्वर का सामर्थ है, आपके हर एक बोझ हटाया जाएगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। In the life of Moses, मूसा के जीवन में मारने के समय he pleaded with the Lord, वो परमेश्वर की ओर विनती करता Lord, है, if I found mercy in thy sight, प्रभु मैं आपके सामने एक दया को प्राप्त करने पर, if you are calling, if you tell that I know you by your name, यदि आप कहते हैं कि मैं तुझे तेरे नाम से जाना जाता हूँ, how could I know that? कैसे मैं जान लूंगा? What is the answer of the Lord? उसका प्रभु का उत्तर क्या है? Exodus chapter 33 and verse 14. निर्गमन 23 का 14 पढ़िए। And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Exodus chapter 33 verse 14. निर्गमन 33 का 14। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Hallelujah! God of Moses is our God. मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। You claim God of Moses is my God. हम ये दावा करना चाहिए कि मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। God of Moses is my God. मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर What है। the Lord is telling? यहाँ प्रभु क्या कहता है? My presence shall go with thee, मेरा हसूरी तेरे साथ रहेगा, and I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा। So in the presence of God there is rest. जहाँ परमेश्वर का हसूरी है वहाँ विश्राम पाया जाएगा। So the presence of God is full of power, परमेश्वर का हसूरी सामर्थ से भरपूर है, and that is why there is rest in the presence of God. इसीलिए प्रभु के हसूरी में विश्राम पाया जाता है। When man was in the Garden of Eden, जब मनुष्य आदेन वाटिका में पाया गया, before he committed sin, जब वो पाप करने के पहले he was enjoying that rest in his life. वो अपने जीवन में परमेश्वर के हसूरी को अनुभव करता रहा। And he was in the presence of God, and that is why he was enjoying that rest in his life. वो परमेश्वर के हसूरी में रहने के कारण वो एक विश्राम को अनुभव किया। He had the visitation of the Lord. वो परमेश्वर के साथ हर वक्त मुलाकात In the करता cool था। of the evening, the Lord visited them, and they had a good conversation with one another. हर एक दिन के ठंडे समय प्रभु के साथ मुलाकात करता था और वे आपस में बातचीत करते थे। Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की When स्तुति we हो। are in the presence of God, जब हम परमेश्वर के हसूरी में पाए we जाएंगे, will have perfect fellowship with God, हमें परमेश्वर के साथ एक सिद्ध रिश्ता होगा and that will give us rest. और वो हमारे जीवन में विश्राम देगा। So we need rest in our soul. इसलिए हमें हमारे प्राण में एक विश्राम चाहिए। That is why in Matthew chapter 11 verse 28 and 29, the Lord Jesus is telling, all that is heavy burden, laden, come unto me, I will give you rest. इसीलिए मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 में यीशु मसीह कहता,
बोझों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम So दूंगा। when we go near to Jesus, जब हम यीशु के पास जाएंगे, when we experience His presence in our life, जब हम यीशु मसीह के हजूरी को हमारे जीवन में अनुभव there will be करेंगे, rest in our soul. जब हम हमारे जीवन में एक विश्राम को This पाएंगे। evening, how many of you are sure that you have rest in your soul? आज ये शाम के समय कितने लोगों के अंदर एक निश्चय है कि मेरे अंदर एक विश्राम I है, have rest in my soul. मेरे प्राण में एक विश्राम है। Such people lift up your hand and shout hallelujah. ऐसे लोग हाथ उठाकर हालेलुया पुकारे, I have rest in my soul. मेरे प्राण में एक विश्राम है। But at the same time, साथ ही साथ we need rest in our spirit. हमारे आत्मा में भी एक विश्राम होना So चाहिए। those who speak in tongues, जो कोई आत्मा में अन्य भाषा में बोलते हैं, they have rest in the spirit. उनके आत्मा में एक विश्राम होगा। By receiving the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues continuously, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक पाते हैं और अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, so we will have rest in our spirit. तब हमारे आत्मा में हम विश्राम पा सकते हैं। God wants man to have rest, and it is the desire of the Lord, it is the will of God, it is the plan of God, it is the purpose of God. प्रभु का ये योजना है और ये इच्छा है और वो मर्जी है कि हर एक मनुष्य उसके विश्राम को हासिल करे। God is the God of rest. हमारा परमेश्वर विश्राम का परमेश्वर है। He created man in the very same form in rest. उसने मनुष्य को अपने समानता से ही विश्राम से ही उसने बनाया। But when man disobeyed, जब मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, he lost the rest. वो उस विश्राम को खो बैठा। He lost the rest in his soul and body and spirit. उसने अपने प्राण में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में इस विश्राम को खो बैठा। If anyone is in such a state this evening, यदि हमारे बीच में कोई इस अवस्था में पाए जाते हैं oh, तो the Lord wants to give you rest. आज आपको प्रभु विश्राम देने के लिए चाहता है। If you hear the counsel of the Lord, यदि आप प्रभु की सलाह को सुन रहे हैं तो as you hear the word of God, Matthew chapter 11 verse 29, and if you come to Jesus, you will have rest in your soul. जैसे आप परमेश्वर के वचन को मत्ती सुसमाचार 11 के 29 में जैसे आप सुनते हो और प्रभु के करीब आते हो, प्रभु आपका बीच में अपनी सामर्थ को जाहिर करेगा। And in Psalm 16 जब हम भजन 16 में आते हैं and verse 9, उसका 9वां वचन, Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। what was the reason? इसका कारण क्या है? Therefore, he's telling the starting that verse with therefore. इसलिए, Why? क्यों? 8th verse gives the answer. 8वां वचन उसका उत्तर देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. I've set the Lord always before me. मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा हूं। This evening, this is the counsel of the Lord. To have rest in your body, you have to set the Lord always before you. इस रात के समय प्रभु का यह सलाह है, आपके जीवन में परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख में रखना होगा। Set the Lord always before you. हर वक्त प्रभु के सम्मुख को अपने सामने रखना। That means, do not set any other things before you. उसका मतलब प्रभु को छोड़कर और कोई वस्तु को अपने सामने कदापि नहीं रखना। Do not keep your problems before you. अपने समस्याओं को अपने सामने नहीं रखना। The problems, if you keep before you, the problems will multiply and multiply and multiply, and you will be totally in problems only. यदि आप समस्याओं को अपने सामने रखने पर समस्या बढ़ता हुआ आपके सामने जाता रहेगा। I do not know how many of you know this Malayalam song. मैं नहीं जानता कितने लोग इस मलयालम गीत को जानते हैं। There is a beautiful chorus in Malayalam. मलयालम में ऐसे गीत है, കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും, കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും, പരപരമീസ പരമരുളീസ നീയത്രേ എൻ രക്ഷസ്ഥാനം, പരപരമീസ പരമരുളീസ നീയത്രേ എൻ രക്ഷസ്ഥാനം, കാർമേഘത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും, കാർമേഘത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും, പരപരമീസ പരമരുളീസ നീയത്തെ എൻ രക്ഷസ്ഥാനം, പരപരമീസ പരമരുളീസ നീയത്തെ എൻ രക്ഷസ്ഥാനം. Hallelujah. In the midst of the dark
clouds around me. जब हमारे सामने एक अंधकार का बादल छाया जाएगा, In the midst of that, उसके बीच में I will see your face bright shining before me. मैं मेरे सामने तेरा चमकता हुआ चेहरा को मैं देखूंगा। Hallelujah! हालेलुया। So dear brother, dear sister, इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, as David says, जैसे दाऊद कहता let है, us also confess, हम सब इकरार करें, I will keep only the Lord before me. मैं मेरे प्रभु को हर वक्त निरंतर मेरे सामने I will रखूंगा, not keep the sickness before me. मेरे सामने मेरा बीमारी को नहीं रखूंगा। That means that I will not set my mind on the sickness. इसका मतलब मेरा मन बीमारी के ऊपर नहीं रहेगा। Always if you keep your mind set on the sickness, that sickness will rule you. यदि आप बीमारी के ऊपर अपने मन को रखने पर वो बीमारी आपको राज्य करेगा, And you will be always under the pressure of that sickness. उसका मतलब आप हर वक्त निरंतर इस बीमारी के दबाव में आप आ जाएंगे। But set Jesus before you. आपके सामने यीशु को रखिए। Oh, this evening make a decision. I will not set my sickness before my eyes. I will set Jesus before me. इस रात के समय एक निर्णय लीजिए, मेरे सामने मेरे बीमारी को नहीं, मेरे यीशु को मेरे सामने रखूंगा। I will not set my worries before me. मेरे सामने मेरे चिंताओं को नहीं रखूंगा। I will not set my sorrows before me. मेरे सामने मेरे दुखों को नहीं रखूंगा। I will keep Jesus before me. मैं यीशु को मेरे सामने रखूंगा। Only Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। Your body will rest. Your body will have perfect rest. आपके शरीर सिद्ध विश्राम में पाया जाएगा। Praise be to His holy name. प्रभु की पवित्र नाम की My presence shall go with thee and I will give you rest. मेरा सम्मुख तेरे साथ रहेगा और तुझे विश्राम दूंगा। Praise be to His holy name. यीशु की पवित्र नाम की Yes, there is rest in the presence of the Lord, and that is why we say there is power in the presence of God. हाँ, परमेश्वर के सूर्य में एक विश्राम है, इसीलिए उसके सम्मुख में एक सामर्थ्य करके हम कहते हैं। Praise be to His holy name. यीशु की पवित्र नाम Now when we read Psalms 31 and verse 20, जब हम भजन 31 का 20 में आते हैं, तू उन्हें दर्शन देने के लिए के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. in the secret of thy presence, the Lord will keep us. प्रभु हमें अपने गुप्त स्थानों में रखेगा, Thereby we will be kept away from all danger. ताकि हम हर एक खतरों से हम दूर रहे। We must be always finding ourselves in the secret of His presence. हम हर वक्त प्रभु के उस गुप्त स्थान में हमें रहना होगा। What is the secret of His presence? ये गुप्त स्थान किसे दिखाता है? So the secret of His presence is the center of His will. ये गुप्त स्थान मसीह का उसके मर्जी के मध्य भाग को दिखाता है। It is the center of His will. उसके मर्जी का मध्य भाग। Praise be to His holy name. मैं यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। In other place, psalmist is praying like this: और एक जगह में भजन लिखने वाला ऐसा प्रार्थना करता है, keep me as the apple of your eye. हे प्रभु मुझे अपने आंख की पुतली के समान तो रख। When we go into the apple of the eye of the Lord, जब हम यीशु के उसके आंख की पुतली में हम जाते हैं, that is, we are in the center of His will. उसका मतलब उसके मर्जी के मध्य भाग में हम सब पाए जाएंगे। What is said about the eye of the Lord? ये मसीह के आंख के बारे में क्या कहा गया है? It is fire. वो आग है, It is fire. वो आग है। Read that verse in Revelation chapter 1 verse 14, I think. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 14 वचन। His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पालिके से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। His eyes a flame of fire. उसका आंख आग का समान उज्जवल था। So when we say that, Lord, I must be in the apple of your eye, जब हम कहते हैं प्रभु मैं तेरे आंख की पुतली के समान रहना है, then where? In the center of that fire. उसका मतलब इस आग के मध्य भाग में। What do we know about Noah? नोआ के बारे में हम क्या जानते हैं? Noah found grace in the eyes of the Lord. नोआ प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह को पाया। That means his eyes are full of grace. उसका मतलब प्रभु के आंख अनुग्रह से भरा हुआ है। When He keeps us in the secret of His presence, means He is keeping us in the center of His grace. जब हमें प्रभु अपने गुप्त स्थान में रखता है तो उसका मतलब यह है वो अपने अनुग्रह के मध्य भाग में रखता है। We must go into the center of His grace. हमें मसीह का उसके अनुग्रह के मध्य भाग में जाना The होगा। eyes of the Lord are full
full of grace. उसका अंक अनुग्रह से भरा हुआ The है। eyes of the Lord are full of love. हमारा प्रभु का अंक प्रेम से भरा हुआ। Love and grace is there in the eyes of the Lord. प्रभु के अंक अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ है। Fire stands for the love. ये आग प्रेम का सदृश है। Oh Lord, keep me in the center of your love. हे प्रभु, तेरे प्रेम के मध्य भाग में मुझे तू रख। That is why Jesus, who was the only begotten Son of the Father, loved by the Father, he surrendered himself to do the perfect will of the Father. इसीलिए यीशु मसीह जो अपने पिता का एकलौता पुत्र था, वो प्रेम के कारण अपने आप को पूरी रीति से दे दिया। When I say that, Lord, keep me in the center of your love. जब मैं कहता हूँ प्रभु तू मुझे अपने प्रेम के मध्य भाग में मुझे रख, Keep me in the secret of your presence. हे प्रभु अपने गुप्त स्थान में मुझे रख। Oh, that means that, Lord, here I surrender myself to do thy perfect will. इसका मतलब यह है प्रभु मैं अपने आप को तेरे सिद्ध इच्छा पूरा करने के लिए समर्पण करता So हूँ। when we surrender ourselves to do the perfect will of the Father, हमें प्रभु के पिता के सिद्ध इच्छा करने के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा। His presence will protect us Lord, of every danger. उसका सम्मुख हमें हर एक खतरों से बचाए रखेगा। We will be protected from the danger of sin. हमें पाप के खतरों से बचाए रखेगा। We will be protected from the danger of falling into sin. हमें पाप में गिरने वाले खतरों से भी प्रभु बचाए रखेगा। How many of you want that experience? कितने लोग ये अनुभव कर चाहते हैं? Dear Lord, I surrender myself to be in the secret of your presence. प्रभु मैं अपने आप को तेरे गुप्त स्थान में रहने के लिए समर्पण करता हूँ। Oh, there is a great power in the presence of God. परमेश्वर के हज़ूरी में एक बड़ा सामर्थ्य है। Let us go into the center of His love. परमेश्वर के उस प्रेम के मध्य भाग में हम जाए। Let us go into the center of His grace. प्रभु के उस अनुग्रह के मध्य भाग में हम जाए। To whom the Lord gives grace. ये अनुग्रह प्रभु किस लिए देता Oh, है? the Lord gives His grace to the humble. प्रभु अपने अनुग्रह दीन लोगों को For देता me है। to go into the center of His grace, यदि मैं उसके अनुग्रह के मध्य भाग में जाना है तो I must become the humblest person. मुझे नम्र होकर बनना होगा। I must become the humblest मैं person. सारे व्यक्तियों से नम्र होना है। I must become most humble to be in the center of His grace. सबसे दीन होकर उसके अनुग्रह के सामने मुझे रहना होगा, So thereby He will keep us away from all the pride of men. ताकि मुझे हर एक मनुष्य के घमंड से मुझे वो दूर रखे। Read that Psalms 31 verse 20 again. भजन 31 का 20 और एक बार पढ़िए। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. From the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. From the strife of tongues and from the pride of man, He will keep us in the secret of His pavilion. मनुष्य के बुरी गोष्ठी से और उनके घमंड से बचाने के लिए प्रभु अपने गुप्त स्थान में हमें रखता है। That is why we need the presence of God to be always there. इसीलिए हमें हर वक्त परमेश्वर के हज़ूरी को संभाले रखना होगा। So when we are in the presence of God, जब हम परमेश्वर के हज़ूरी में रहते we हैं, are out of all kinds of danger. हम सारे खतरों से दूर रहेंगे। What is the meaning of presence of God? ये परमेश्वर के हज़ूरी का मतलब क्या है? That is, I must surrender myself to do the perfect will of God. उसका मतलब मैं अपने आप को उसके सिद्ध इच्छा पूरा करने के लिए समर्पण करना And I होगा। must become the humblest person so that I may receive grace upon grace. मैं संसार में सबसे दीन और नम्र होकर मुझे बनना है, ताकि उसका अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह मैं अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। Why? क्यों? When we go to 1 Peter chapter 1 and verse 13, जब हम पहले पत्रस पहले देखकर 13 वचन में आते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. at the revelation of Jesus Christ, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, there is going to be a grace brought for you, dear brother, dear sister. वो दिन एक अनुग्रह प्रिय भाई प्रिय बहन आपके लिए प्रकट होने वाला है। That grace has not yet been revealed unto mankind. वो मनुष्य जाति के लिए अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। That grace is going to be revealed only at the coming of Jesus. ये अनुग्रह यीशु मसीह के प्रकट होने वाले उस दिन में होगा। At the coming of the Lord Jesus, there is going to be a grace that is going to be revealed unto mankind. By that grace, we will leave this earth and we will fly away and meet our beloved in the mid-air. यीशु मसीह के प्रकट होने वाले उस दिन में मनुष्य जाति के लिए वो अनुग्रह प्रकट होगा, ताकि हम उड़कर प्रभु के साथ मध्य आकाश में युगाने हुए रहें। For that,
उसके लिए you and I आप और मैं should be in the center of the will of God. हमें परमेश्वर के मर्जी के मध्य भाग में रहना होगा। You and I आप और मैं must be found in the center of the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के मध्य भाग में रहना होगा। For such people, वे लोगों के लिए the final grace will be revealed. अंतिम अनुग्रह प्रकट होगा। What is the final grace? अंतिम अनुग्रह क्या है? The power to leave this earth. ये सामर्थ्य, इस संसार को हम छोड़े। The power to leave this earth. That time the earth forces cannot pull us down. ये कोई संसार का सामर्थ्य में नीचे की ओर नहीं खींचेगा, But heavenly forces will pull us up. स्वर्गीय सेना में ऊपर की ओर खींचेगा। The grace of the Lord will pull us up. परमेश्वर का अनुग्रह में ऊपर की ओर खींचेगा। When we are perfectly doing the will of God, जब हमारे जीवन में मसीह के सिद्ध इच्छा को पूरा करेंगे, power will be generated in us. हमारे अंदर वो सामर्थ क्रिया होगा, And that power will make us to fly away as Jesus was taken away into the और mid-air. वो सामर्थ हमें मसीह के समान आकाश में उड़ लेने के लिए सहायता करेगा। Praise be to His holy name. यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। So dear brother, dear sister, इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, it is essential for us to always preserve the presence of God in our lives. हमारे जीवन में हर वक्त परमेश्वर के हजूरी को संभाले रखना जरूरी है। Now when we go to Luke chapter 5 जब हम लूका सुसमाचार 5 अध्याय में आते हैं, and verse 17, 17 वचन पढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. power of the Lord was present to heal them. परमेश्वर का सामर्थ चंगा करने के लिए उनके बीच में था। When Jesus is there, जब यीशु वहां है, wherever Jesus went, जहां कहीं यीशु गया, wherever Jesus is found, जहां कहीं यीशु पाया गया, power to heal is present. सामर्थ चंगा करने के लिए सामर्थ वहां उपस्थित था। Amen. Amen. हमें Brothers, amen. Sisters, amen. Hallelujah. Jesus is here. यीशु मसीह हमारे बीच में है। Jesus was there in flesh and blood. जब यीशु मांस और लहू में पाया गया, That time power to heal was there present. उस समय चंगा करने के लिए सामर्थ उनके बीच में था। Now Jesus is present with a glorious body. लेकिन आज हमारे बीच में महिमा में शरीर के साथ हमारे यीशु उपस्थित है। He is walking in the midst of the high priest of the order of Melchizedek. वो मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक होकर हमारे बीच में चल फिर रहा है। He is walking in the midst with a glorious body. हमारे बीच में महिमा में शरीर के साथ चल फिर रहा है। If the physical body of Jesus, when it is present, if there is power to heal was present, how much more power to heal is present here now? यदि अक्षरी तौर से यीशु मसीह संसार में रहने के समय, चल फिरने के समय एक चंगाई का सामर्थ काम किया है, तो आत्मिक तौर से हमारे बीच में यीशु है, तो कितना बड़ा चंगाई का सामर्थ हमारे बीच में काम करेगा। If you believe, यदि आप विश्वास करेंगे, the Lord says, I am the Lord that healeth thee. प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा That हूँ। Jehovah Rapha is here. यहोवा रफा हमारे बीच में है। When Jesus was in the flesh on this earth, जब यीशु मसीह शरीर से इस संसार में था, he was anointed by the Holy Spirit and he was doing good works and healing the people and making the people to get deliverance from the power of darkness. वो अभिषेक किया गया और अच्छा काम करता रहा, अंधकार से लोगों को छुड़ाता रहा। That Jesus is walking in the midst. वो यीशु मसीह हमारे बीच में है। That Jesus is here to heal you. वो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए हमारे You are बीच in में the है। presence of God. आप परमेश्वर के सूर्य में पाए जाते You हो। must receive the healing in your soul, in your spirit and your body. आपके प्राण में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में एक चंगाई को आपको हासिल करना होगा। What is the healing in the spirit? ये आत्मा में चंगाई क्या है? What is the healing in the spirit? ये आत्मा का चंगाई क्या है? You might have received the Holy Spirit, शायद आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए but होंगे, you are not experiencing the power of the Holy Spirit in your life. लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ को अनुभव नहीं किए होंगे। This evening, इस रात के समय you are going to experience the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस करोगे। You are going to speak in tongues which you have never spoken ever. अब तक आपने नई बात की, अब अन्य भाषा बोलने वाले हैं। You are going to hear
hear the voice of the Lord very clearly. आप परमेश्वर की वाणी को स्पष्टता से सुनने वाले The हैं। Lord is going to speak to you very distinctly. आप परमेश्वर के वाणी को स्पष्टता से सुनने वाले हो। And your ears are going to hear that and your heart is going to rejoice by that. आप परमेश्वर के वाणी को अपने कान में सुनेंगे, आपका हृदय आनंद हो जाएगा। Your soul is burdened about many things. आपका प्राण कई बातों में बोझ है, And thereby you're backslidden from the presence of God. इसलिए आप परमेश्वर के असुरी को छोड़कर पीछे चले गए। You're not regular to the presence of God. आप परमेश्वर के असुरी से दूर चले गए हो। You casually came to the presence of the आप Lord. नाम के लिए आकर बैठे हो। You casually go to the service. आप नाम के लिए मसीह की उपासना में जाते हो। You never go to the Bible studies. आप कभी बाइबल अध्ययन में नहीं जाते हो। You never go to the tarrying meetings. आप टैरिंग मीटिंग में नहीं जाते हो। In that way your soul is totally far away from the Lord. इसके समान आपका प्राण परमेश्वर के असुरी से बहुत दूर होगा। But this evening, लेकिन इस रात के समय healing power is present. चंगा करने वाला सामर्थ हमारे बीच में है। He is going to heal your soul. वो आपके प्राण को चंगा करने के लिए And he is चाहता है। going to heal your backsliding. वो आपके पीछे हुए स्वभाव को चंगा करने के लिए चाहता है। I will heal your backsliding, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे पीछे वाले स्वभाव को चंगा करूंगा। And in Hosea chapter 2 verse 14, जब हम निर्गमन Hosea chapter 2 verse 14, होशिया 2:14 में आते the हैं, Lord says like this, वहाँ प्रभु ऐसा कहता है, I will allure her into the wilderness मैं तुझे जंगल में मोहित करूंगा and I will speak to you comfortably. और तेरे से शांति की बातें करूंगा। I will speak to you comfortably. मैं तुझसे शांति की बातें करूंगा। This evening, इस रात के समय you are going to hear the comfortable words of Jesus. आप में मसीह के उस शांति के वाणी को सुनने वाले हो। You are going to hear the Lord speaking to you heart to heart. आप अपने हृदय से प्रभु के वाणी को सुन सकते हो। There will be healing in your soul. There will be healing in your spirit taking place. आपके प्राण में, आपके आत्मा में चंगाई का काम होगा। And not only that, इतना ही नहीं, God is concerned about your body also. आपके शरीर से भी प्रभु चिंता करता है। He will heal your body. आपके शरीर को वो चंगा There करेगा। will be sickness for any long years. आप शायद कई साल तक बीमार होंगे। So you might have prayed with many servants of God for that sickness to be healed. आपका बीमारी के लिए कई सेवकों से आप प्रार्थना किए होंगे, But this evening, लेकिन इस रात के समय in the presence of God, ये परमेश्वर के सूरी में you are going to be healed. आप निश्चय चंगाई को हासिल करोगे। I believe the Spirit of the Lord is confirming it. मैं ये विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा ये वास्तविक तौर से पूरा करेगा। I believe the Holy Spirit is sealing this. प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा ये बात को सुन रहा है। You are going to be healed. आप निश्चय चंगा हो जाओगे। Not only in your body, आपके शरीर में केवल नहीं, not only in your soul, अपने प्राण में केवल नहीं, in your spirit also. आपके आत्मा में भी। You will go from this place hale and healthy. आप ये जगह से आरोग्यता के साथ, चंगाई के साथ लौटोगे। Because there is a great quickening power in the presence of God. वही परमेश्वर के सूर्य में काम करने वाला एक छिलाने वाला सामर्थ है। When the rod of Aaron was kept in the presence of God, जब आरोन की छड़ी परमेश्वर के सूर्य में रखा गया, one night it was kept in the presence of the Lord. केवल एक रात परमेश्वर के सूर्य में था। It was a dry rod. वो एक सूखा छड़ी है, But that rod, it blossomed. लेकिन वो छड़ी जो है वो फल देने And लगा it brought forth fruit. और वो फल देने लगा And almonds came out of that rod. और उसके द्वारा बादाम निकले। Oh, there is quickening power in the presence of God. परमेश्वर के सूर्य में छिलाने वाला सामर्थ काम करता है। That presence is now found here. वो हजूरी आज हमारे बीच में है। Finally, अंत में John chapter 14 यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय and verse 3. उसका 3रा वचन। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may also be. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। If you experience the presence of God daily in your life, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के सूर्य को दैनिक आप अनुभव करते हैं, तो you will appear in His presence forever. आप परमेश्वर के सूर्य में निरंतर सदा काल तक पाए जाओगे। Read Hebrews chapter 9 verse 24 and 28. इब्रानी की पत्री का 9वां अध्याय के 24 और 28 को पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वैसा ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार
बिना पाप के दिखाई देगा। For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। He has entered within the veil and he is before the presence of God for you and me. वो पर्दा के भीतर प्रवेश किया परमेश्वर के सूरी में, आपके लिए और मेरे लिए वो है। And from there he is going to come back. और वहां से वापस लौटने वाला है। For whom? क्यों, किस लिए? For those who are now experiencing the presence of God in their life. जो अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर रहे हैं। Who are they? कौन है वो? They are the people waiting without sin. वो पाप रहित प्रभु के लिए बाट होते हैं। They are the people who have hated sin. वो पाप को नफरत करने वाले झुंड They है। are the people who have victory over sin. उनको पाप से जय पाए हैं। They are the people who kept them sanctified. वो पवित्रता के साथ प्रभु के सूर्य में They संभाले are the जाते हैं। people who are keeping them holy. वो पवित्र जीवन बिताते हैं। Oh, they are the people who experience the presence of God. वो हर वक्त परमेश्वर के सूर्य का अपने जीवन में अनुभव करते For हैं। them, उनके लिए Jesus is coming back with double power. उनके लिए यीशु मसीह दुगना सामर्थ के साथ लौट He is आएगा। going to come with a mighty वो power. एक अद्भुत सामर्थ के साथ लौट आएगा। All those who are waiting for him. जो कई उसके लिए भाट होते हैं, All those who are waiting for the second coming of Jesus. जो कई दूसरा आगमन के लिए भाट In होते a हैं, twinkling of an eye. पलक झपकी मारते As हैं, the trumpet sound. जब सूर्य फूंका जाएगा, Oh, we will leave this हम earth. इस पृथ्वी को छोड़ेंगे। By the power of God. जहाँ परमेश्वर का सामर्थ By है, the power of his grace. उसके अनुग्रह के द्वारा, By the power of his spirit. वो उसके आत्मा के सामर्थ के द्वारा, By the power of his word. उसके वचन के सामर्थ By के the द्वारा, power of his body. उसके शरीर के By सामर्थ the के power द्वारा, of his blood. उसके लहू के सामर्थ के द्वारा Oh, we will fly away. हम उड़ जाएंगे। We will fly हम away. उड़ जाएंगे। And we will meet him in the midair. हम उसके साथ मध्य आकाश में मुलाकात करेंगे। May the Lord help us. प्रभु हमें सहायता करे। Let us be revived by the power of God. इसीलिए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिलाए जाना है। Let us experience the power of God right आज हम now. उस सामर्थ को हम अनुभव करें। Dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, Christian life is a powerful life. मसीह जीवन एक सामर्थ्य जीवन है। Christian life is a victorious life. मसीह जीवन एक जय जीवन है। Christian life is an overcoming life. मसीह जीवन एक जय जीवन है। Christian's life is going from victory to victory. मसीह जीवन जय के ऊपर जय हासिल करने वाला Christ एक has जीवन called है। you to victory. मसीह ने हमें जय के लिए बुलाया है। Christ has called you to victory. मसीह ने हमें जय के लिए बुलाया है, For the victorious ones. ताकि वो हम जय पाए हुए लोगों For के the लिए, overcomers. ताकि वे जयवंत लोगों के लिए He is going to appear very soon. यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, So that we will be forever and ever in the presence of God in eternity. ताकि हम अनंत काल तक युगा नहीं होकर परमेश्वर के सूर्य में पाए जाएंगे। There is no cry there. वहाँ रोना नहीं है, There is no sickness there. वहाँ बीमारी नहीं है, There is no pain there. वहाँ दर्द नहीं है, There is no sorrow there. वहाँ दुख नहीं है, There is, oh, it will be enjoyable, everlasting joy. वहाँ हम अनंत काल के खुशी में हम पाए जाएंगे। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होएंगे खत्म। क्योंकि उसके साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। क्योंकि उसके साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी मुसीबत होगी खत्म। क्योंकि उसके साथ हम सब शामिल होंगे,
पिता तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु तू हमारा महान परमेश्वर है। हर दिन तेरी भलाइयों को याद करने के लिए प्रभु हम कुछ नहीं है, तेरी महान करना है, दया है, इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें खुदावंद एक भोपाल शहर में खुदावंद एक मीटिंग दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। सचमुच खुदावंद ये मौसम को देखने से हम बहुत निराश में थे प्रभु, मौसम को अनुकूल करके देना प्रभु, हमें मौसम को अनुकूल करके दिया। 3 दिन मीटिंग चलाने के लिए प्रभु कृपा दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई भी रुकावट हो बिना प्रभु हमारे साथ रह के हमारे लिए सब कुछ करके दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे सोचने हमारे समझने से बढ़ के हमारे लिए अद्भुत काम किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। सचमुच प्रभु जी तेरे दास के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। 3 दिन से तेरा वचन सुनते आ रहे, तेरा आगमन के बारे में खुदावंद। इन दिनों में सचमुच खुदावंद तेरा आगमन के बारे में सुनते हुए, डरते हुए, कामते हुए खुदावंद जीवन बिताने के लिए हमारे एक लोगों को तू सहायता करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। जो लोग उद्धार नहीं पाए, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया करके खुदावंद, उनको भी ये पवित्र आत्मा पाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए और तेरा आगमन में पाए जाने के लिए हर एक को तू योग्य बनाने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। हमारे लिए खुदावंद तूने रखे हुए स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें योग्य बनाने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। सचमुच हमारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहे खुदावंद, इसलिए उस जगह को लिए हमारे एक उसके लिए योग्य बन जाने के लिए तू सहायता कर खुदा। तू हमारा वायदे, तू हमारा चंगा करने वाला ये होगा करके खुदावंद। सचमुच तू हमें विश्राम देगा करके खुदावंद, हमें विश्राम देकर प्रभु देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। तुम हमारे बीमारियों को, रोगों को खुदावंद चंगा करेगा करके खुदावंद तूने किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में रहा, हमारे एक से बातचीत किया, हर एक को अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। ये जो अनुग्रह या आशीषों को प्राप्त किया खुदावंद, कोई भी इनको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद तेरा आगमन के लिए हर दिन तैयार होने के लिए हर एक लोगों को तू सहायता करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। आए वाले सारे लोगों को तूने अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। ये जगह दिया वाला पास्टर के लिए भी तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। प्रभु जी उनको भी तू अनुग्रह देना, आशीष करना है, उनके परिवार को भी आशीष करना है, उनका सेवा को भी आशीष करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष करके खुदावंद जब तेरे लोग जाते हैं, तेरी हुजूरी हर एक के साथ रहने के लिए सहायता कर। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर तेरे हाथ में सौंप देते हैं, पवित्र कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र का समाहिता हमारे ससरा पौत्रों के संतों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक सदा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया।